Because of this, yeast is produced in along with the sugar, natural sugar present in grains like barley, wheat, rice, crushed juice, fruit, etc. लोगों बच्चों, यीस्ट जो है ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। ठीक है, अल्कोहल और एसिटिक एसिड बनाने में काम आता है। अब और आपको पता है कि अल्कोहल एक बिजनेस है, यानी अल्कोहल यानी शराब, जो एक बिजनेस है। और इस शराब को बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम यीस्ट है ये काम देता है। नाउ this is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. This process of conversion of sugar into alcohol is known as yeast fermentation. fermentation किसे कहते हैं? ठीक है, fermentation मतलब ये कि शक्कर को, ठीक है, शक्कर के अंदर, शुगर के अंदर, राइट, शक्कर के अंदर यीस्ट मिलाकर उसे अच्छी तरह इतना उबालना कि वो शराब बन जाए, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। ठीक है, इसके लिए आप एक घर में एक एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, 500 ml बीकर filled up to 3/4 with water, dissolve 2 to 3 teaspoons of sugar in it, add half a spoon of yeast powder to the sugar solution. Keep it covered into a warm place for 4 to 5 hours. Now smell the solution. Can you get a smell? कि क्या करो आप, एक आधे लीटर का जो आधे लीटर का अगर कोई कांच का गिलास है तो उसमें, उस कांच के गिलास में पौना गिलास, आधा गिलास से ऊपर और पूर्ण गिलास से नीचे पौना गिलास पानी लो और उसमें तीन चमचे शक्कर ऐड करो। ठीक है, उस शक्कर में ईस्ट पाउडर ऐड करो। ईस्ट पाउडर आपको कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, एक चमचा ईस्ट पाउडर ऐड करके अच्छी तरह मिक्सअप करके उसे 5 घंटों के लिए फुल पैक करके कहीं रख दो। 5 घंटों के बाद अगर आप स्मेल देखेंगे तो आपको बहुत गंदी स्मेल आएगी। वाई? इसलिए क्योंकि ईस्ट पाउडर क्या करता है, शक्कर को जो है सो शक्कर में पानी मिले हुए शक्कर में जो पानी मिल जाता है, ठीक है, शक्कर मिले हुए पानी को शराब में कन्वर्ट कर देता है। ईस्ट पाउडर क्या करता है, शक्कर मिले हुए पानी को, वो पानी जिसमें शक्कर मिली हुई है उसे शराब में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस इन विच द शुगर इज गेट्स कन्वर्टेड टू अल्कोहल इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। अब मेडिकल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज है, क्या इस्तेमाल है, वो देखेंगे। Now let us see how the microorganisms are used in medical field. Okay, students, whenever we feel sick, whenever we feel not well, what we do? We go to doctor. Okay, what the doctor will do? Doctor will give us the tablets. And do you know what the tablet will be? The tablets will be antibiotic tablets. ठीक है, antibiotic tablets. Okay, the tablets that antibiotic tablets or capsules or injections or penicillin. Okay, what are they? That are antibiotics. Antibiotics means the source of these are, and these antibiotics are nothing but microorganisms. These are microorganisms which give your body to fight with the disease. Okay, which give your body to fight with your illness. Okay, and among these uh, antibiotics, the famous antibiotics are streptomycin, tetracycline, and erythromycin. Okay, these are the some of the microorganisms which are called as antibiotics. And obviously these antibiotics are made from bacteria and fungi. Okay, these antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms. The specific microorganisms which are useful to prepare the capsule are taken and they are fermented and they are processed and they are bacterified to make the antibiotic tablets. Okay, antibiotics are even mixed with the feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals. They are also used to control many plant diseases. Antibiotics are also used to control many diseases which occurs in the plants. Not only as the human beings get diseases, same way plants also will get diseases.
To cure that diseases, microorganisms are used. तो बच्चों मेडिकल फील्ड में भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, हमें टैबलेट देता है या फिर कैप्सूल देता है या इंजेक्शन देता है या फिर पेनिसिलिन देता है, ठीक है। तो वो टैबलेट और इंजेक्शन क्या होता है एक्चुअली होता है एंटीबायोटिक होते हैं। और वो एंटीबायोटिक बनते किससे हैं, वो एंटीबायोटिक्स बनते हैं बैक्टीरिया से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओके, हमें जब हम बीमार होते हैं तो हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने बहुत से एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं। लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बाहर से आने वाले बीमारी से नहीं लड़ पाते तो हमें जब ज़रूरत पड़ती है हमें डॉक्टर के पास जाने की, तो डॉक्टर क्या करता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें हमारी बीमारी से लड़ने के लिए ज़रूरी होते हैं वो टैबलेट की शक्ल में देता है, ठीक है। जब हम वो टैबलेट खाते हैं तो हमारे जिस्म को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, बैक्टीरियाज मिलते हैं, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं। वो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, हमारे जिस्म के अंदर, हमारे शरीर के अंदर की बीमारी से लड़कर उसे खत्म कर देते हैं और हम अच्छे हो जाते हैं। तो और इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है गोलियां बनाने में, टैबलेट बनाने में इस्तेमाल होते हैं। और सबसे ज्यादा मशहूर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासिलिन है, एथिरोमाइसिन है। ये थोड़े से बैक्टीरियाज है जिससे हमारे खाने खाए जाने वाले गोलियां बनाए जाते हैं और टैबलेट्स बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन और एरिथ्रोमाइसिन ये बहुत मशहूर बैक्टीरियाज है और इसे फंगाई और बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसकी मदद से हम जो है इसकी मदद से गोलियां बनाए जाते हैं। वो गोलियां जो हमें डॉक्टर्स देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिसीज इलाज करने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल। बच्चों अब आते हैं वैक्सीन के बारे में। वैक्सीन किसे कहते हैं? व्हेन अ डिसीज कैरिंग माइक्रोब एंटर अवर बॉडी, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बीमारी मौजूद है अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए, ठीक है, द बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, ठीक है। अब बीमारी अब अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए जो कि बीमारी लाता है, तो उससे लड़ने के लिए हमारा जिस्म क्या करता है, एक एंटीबायोटिक बनाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे शहर में कोई हमसे लड़ने के लिए आ जाए तो हम ऑलरेडी क्या क्या करके रखे हुए हैं, हमारे शहर में एक आर्मी बना के रखे हुए हैं, फौज बना के रखे हैं। वो फौज क्या करते हैं, दुश्मन से लड़कर दुश्मनों को गिरा देते हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में भी एंटीबायोटिक्स का एक फौज पैदा होती है। वो फौज क्या करती है, बाहर से बीमारी लाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ती है और उन्हें खत्म कर देती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है बीमारी से महफूज हो जाता है। लेकिन बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हमारे जिस्म एंटीबायोटिक्स नहीं बना पाता है, हमारे जिस्म फौज तैयार नहीं कर पाता है। उसके वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, बीमार हो जाती है। जब उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर हमें वैक्सीन देते हैं। वैक्सीन यानी हमारे जिस्म में एक फौज तैयार करते हैं। हमारे जिस्म में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं जो हमारे जिस्म में दाखिल होने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। डॉक्टर जब वैक्सीन देते हैं तो वैक्सीन में जो बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे जिस्म में सारी जिंदगी रहते हैं। और वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हमारे जिस्म को बड़े बड़े बीमारियां लगने से महफूज रखते हैं, बचाते हैं। तो कौन से बीमारियों से बचाते हैं, जैसे कि कोलेरा है, टीबी है, स्मॉल पॉक्स है यानी चिकनगुनिया, और पोलियो से बचाते हैं, और हेपेटाइटिस होने से बचाते हैं, और टीबी ट्यूबरकुलोसिस होने से बचाते हैं। तो ये तमाम जो बीमारियां हैं हमारे जिस्म में दाखिल होती हैं और हमारे जिस्म को वो बीमारियों से बचाने के लिए हमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, वैक्सीन देते हैं। उस वैक्सीन में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जिस्म को ताकत देते हैं और हमारे जिस्म में मौजूद रहते हैं। जो ही हमारे जिस्म पर बीमारी का हमला होता है तो वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उठकर खड़े होकर उस बीमारी लाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाते हैं, मार देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है बीमारी आने से महफूज हो जाता है।